So if you're preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos, which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise professor questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also, we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIIB. It's related to the deal structuring and the financial strategies over there. ठीक है, तो डील स्ट्रक्चरिंग में पर्टिकुलरली होता क्या है, मेन आपको होता है कि आपको प्राइमरी गोल्स, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, लेट्स देखें इसकी यहां पर एक डील होने वाली है पार्टी ए के बीच में एंड पार्टी बी के बीच में, तो यहां पर इनके बीच में जो कोई भी इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डील को लेकर के, उनको आपको सबसे पहले ढूंढना है कि वो क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है, उनका आपने पता लगाना होता है. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. अब मेन चीज क्या होती है, जब भी कोई डील होती है तो हमारा मेन मकसद होता है कि दोनों पार्टीज की वो जो यहां पर ड्रीम्स है, दोनों की जो टारगेट है वो अचीव हो जाए. एंड फर्दर कुछ एक टारगेट्स ऐसे होते हैं जो अचीव नहीं हो सकते, तो उसके रिलेटेड हमें ऑल्टरनेटिव पता होना चाहिए. एंड फर्दर उनके क्या क्या रिस्क रहेंगे, शेयर रिस्क रहेंगे, उन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए. एंड एप्रोप्रिएट डील स्ट्रक्चर वो होगा जहां पर वो पर्टिकुलरली जितने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों पर्सन के होंगे, पार्टीज के होंगे, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर आपस में क्या हो, वो टारगेट फुलफिल हो, यानी कि वो जो उनके टारगेट्स है वो अचीव हो. एंड साथ के साथ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क उनका रहे, यानी कि अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से उनका रिस्क रहे. एंड वैल्यू जनरेट हो, यानी कि जो कोई भी यहां पर मर्जर एंड एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन में वो आने वाले हैं, तो उसके केस पे यहां पर खास करके ध्यान रखना पड़ेगा डील स्ट्रक्चर में कि दोनों के जो जो यहां पर टारगेट्स है वो दोनों के अचीव हो. एंड इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डील स्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं. सो डील स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग दोनों आपस में काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है. एंड फर्दर हमने इसके थ्रू एक नतीजा पहुंचाना होता है कि डील स्ट्रक्चरिंग एंड नेगोशिएशन का जो प्रोसेस होता है डील को क्लोज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यानी कि पार्टी ए की ये डील है, पार्टी बी की ये डील है, दोनों की डील में आपस में कॉमन पॉइंट ढूंढना कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड एक नतीजे तक पहुंचना, वही डील स्ट्रक्चरिंग है. अगर मेजर एस्पेक्ट की हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, तो सबसे पहले चीज क्या होती है कि यहां पर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि आपके पास एक एक्विजिशन व्हीकल होगी एंड फर्दर पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी. यानी कि एक्विजिशन व्हीकल पर्टिकुलरली वो व्हीकल होगी जो यहां पर एक्वायर करने वाली है. उसके लिए आपने कुछ ना कुछ एक बॉडी बना रखी होगी, यानी कि कुछ एक टीम मेंबर्स की बनानी होगी ना, आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जो एक्वायर करेगी, जो हर तरफ चीज की तरफ ध्यान करेगी. क्योंकि मेजर पार्ट क्या होता है कि आपने जब एक्वायर करने का सोच ही लिया है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन भी करनी होती है, ताकि आप उस फर्म को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करते हुए उसकी प्रॉपर वैल्यू आपके पास रिसीव हो जाए. दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट. ओके, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू पोस्ट क्लोजिंग, वो पर्टिकुलर उसी चीज से रिलेटेड है, यानी कि एक तो एक्वायरिंग होगी, उसके बाद इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो गया. तो फॉर्म ऑफ एक्विजिशन आपकी कौन सी होने वाली है, पेमेंट किस तरह से करने वाले हैं, एंड लीगल फॉर्म क्या रहेगी सेलिंग एंटिटी की, यानी कि जो आपकी सेलिंग एंटिटी है, जो बेचने वाली है, उसकी क्या लीगल फॉर्म है. एंड फर्दर जैसे ही मान लीजिए कि आपने एक प्राइवेट कंपनी है एलएलपी को कर रही है, तो क्या क्या लीगल फॉर्म है उसके बारे में. ठीक है, एंड फर्दर एक जो यहां पर चेंजेस है, यानी कि अगर कुछ एक चेंजेस होते हैं वो किस तरह से इंपैक्ट डाल सकते हैं बाकी पार्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी एक चीज में फेरबदल होता है तो दूसरी चीजों के ऊपर क्या नतीजा पड़ेगा उसके बारे में. तो ये काफी ज्यादा मेजर एस्पेक्ट है. जब डील स्ट्रक्चरिंग के बारे में हमने सोचना होता है तो स्पेसिफिक आपको स्ट्रेटेजीज देखनी पड़ेंगी, ताकि अगर कोई प्राइस डिस्पैरिटी है, इन प्रेजेंट है, तो उसको हम दूर कर पाए. एंड फर्दर हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने मर्जर एंड एक्विजिशन को सक्सेसफुल बनाना है. एंड फर्दर हमने क्या करना होता है, जो लेवरेज बायर्ड होते हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग हो गई, या फिर पर्टिकुलरली एक्विजिशन जो हो गए उसके थ्रू पर्टिकुलरली देखना होता है कि जो दोनों की यहां पर टारगेट्स हैं दोनों के, वो दोनों के अचीव हो जाए. दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट.
अभी हम बात करने वाले नेगोशिएशंस के बारे में। आपको एक बेसिक आइडिया पता लग गया होगा कि मैं डील स्ट्रक्चरिंग में किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आपने यहां पर एक टारगेट को चूज करी, लेट्स से केस कि मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर फर्म बी को परचेज करना है, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पर फर्म बी को मुझे परचेज करना है, तो मैं उसका क्या करना शुरू कर दूंगा, फाइनेंशियल एनालिसिस करना शुरू कर दूंगा कि वो जो यहां पर इंस्टीट्यूट है वो कैसी है, अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड फर्दर उसके बाद यहां पर मैं यहां पर डील का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दूंगा कि ये यहां पर जो डील हम करने वाले हैं ये किस तरह से होगी, इसका डील का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे, उन सभी एस्पेक्ट को हम यहां पर देखना शुरू कर देते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू इट। एंड हम यहां पर ये भी देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ रिस्क क्या है। अब कई बार क्या होता है कि जो बायर है ना, वो मोटा मोटा चीजें देख रहे थे कि क्या क्या चीजें, लेकिन वो यहां पर इन डेप्थ में जाकर के नहीं देखता। तो यहां पर आपको इन डेप्थ में जाकर के सभी चीजों को देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें थी एंड फर्दर किस तरह से इंपैक्ट पड़ता है, सभी चीजों को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। लेकिन जो नेगोशिएशन का ये जो प्रोसेस होता है ना, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंप्लेक्सिटी होती है। बहुत सी पार्टीज यहां पर इन्वॉल्व हैं, आपको बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स के बारे में देखना पड़ता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग देखनी पड़ती है, सब चीजें आपको गो थ्रू करनी पड़ती है। तो काफी यहां पर ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी आपके पास M&A है या फिर अदर रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज है जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है आप उनको परचेज कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सब चीजें यहां पर शामिल हैं। तो उसमें यहां पर डिफरेंट पार्ट्स में इन्वॉल्व है। तो 4 या 5 पार्ट यहां पर हैं। पहला पार्ट क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है कि आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि आपके लिए मर्जर एंड एक्विजिशन का क्या मेन मोटिवेशन क्या है, ठीक है। एंड फर्दर रेगुलेटरी कंसीडरेशन देखनी पड़ेगी कि इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी एक्सेट्रा क्या क्या चीजें कहते हैं, उसके बारे में हो गया। एंड फर्दर आपके टेक ओवर टैक्टिक्स क्या है, क्या डिफेंस है। टैक्टिक मतलब कि अगर आप टेक ओवर करना चाहते हो तो आप क्या टेक्निक लेके चलोगे। अगर आपके ऊपर एक्विजिशन होने वाली है, टेक कंट्रोल होने वाला, आपका टेक ओवर होने वाला है, तो उसके बदले में आप अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या चीजें करने वाली हो, वो सब चीजें इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। तो ये रहता है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये पार्ट 1 आता है। पार्ट 2 आता है यहां पर प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस में क्या होता है कि एक्विजिशन प्लान बनता है। हम यहां पर जो क्लोजिंग एक्टिविटीज होती है उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम आपस में डील करना चाहते हैं, ठीक है। एंड फर्दर उसके बाद इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरह से होगी। थर्ड जो पार्ट है दैट्स रिलेटेड टू वैल्यूएशन एंड मॉडलिंग ओवर देयर। हम पब्लिक कंपनी वैल्यूएशन करते हैं, प्राइवेट कंपनी वैल्यूएशन करते हैं, या फिर फाइनेंशियल मॉडल जो टेक्निक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट इज अ फंडा। एंड हमारे पास फोर्थ पार्ट होता है हमारा यहां पर स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड, यानी कि हम पेमेंट एक्सेट्रा के बारे में देखते हैं कि जो भी लीगल कंसीडरेशंस हैं, पेमेंट है, वो सब चीजें देख ली। अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं, टैक्स कंसीडरेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काफी ज्यादा। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज देखते हैं। एंड फॉर द फिफ्थ पार्ट होता है आपका स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर होती है आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी कि ऑल्टरनेट बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। लेट्स देखिए इसकी सभी चीजें कुछ भी नहीं हुआ, अब उसके केस में आपको अपना जो बिजनेस है वो तो इंक्रीज करना ही है ना। तो उसके केस में आप बिजनेस अलायंस बना सकते हो, डाइवर्सिटी कर सकते हो, स्पिन ऑफ कर सकते हो, कार्व आउट्स कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलरली जो आपकी बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है किसी कंपनी का, उसके थ्रू भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर मेन प्रोसेस रहता है किसके रिलेटेड। अगर हम एक्टिविटीज को इन होल देखते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं जब यहां पर मर्जर एंड एक्विजिशन की बात होती है, ओके। एंड फॉर दैट रिलेटेड टू पेमेंट एंड लीगल कंसीडरेशन। अब ये वाले पार्ट पर देखो, जो हम स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंसिंग वाला पार्ट कर रहे थे, ये वाला पार्ट है ना, अभी इसी के ऊपर बैठे हैं, यही चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर इसी पार्ट के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले दैट्स रिलेटेड टू द पेमेंट एंड लीगल कंसीडरेशंस, ठीक है। तो कंसीडरेशन जो है वो यहां पर पर्टिकुलर जो आपके पास क्विड प्रो क्यू है ना, उससे आता है, यानी कि हमें रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। जब अगर कंपनी टेक ओवर कर रहे हो आप या एक्विजिशन कर रहे हो तो उसके केस में कंपनी को कुछ बदले में मिलना चाहिए। दैट इज द थिंग रिलेटेड इट। अब जो पेमेंट का मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या हो सकता है, कैश के मोड में हो सकती है, कॉमन स्टॉक हो सकता है, डेब्ट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन में हो सकता है, यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो कि कुछ एक पार्ट कैश का दे दिया, कुछ एक हमने स्टॉक दे दिया, कुछ एक हमने डेब्ट दे दिया, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब पे आउट होता है वो लमसम भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्लम्प जो आपका था पे डाउन था वो भी हो सकता है, ठीक है। तो पे आउट जो है वन टाइम लमसम भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी होता है, हो सकता है कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर आप इंस्टॉलमेंट्स के रूप में उसको पे कर दें, ऐसी चीज भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर बहुत से मैनर्स हैं जिसके बीच में जो यहां पर ऑनरशिप है वो यहां पर ट्रांसफर हो सकती है, ओके। फर्दर यहां पर हम पढ़ने वाले रिलेटेड टू एक्वायर्स ऑब्जेक्टिव एंड पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में देख लेते हैं, ओके। अब एक्वायरर के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जो एक्वायरर है वो क्या चाहता है कि मेरा मैक्सिमम कंट्रोल रहे, यानी कि मैक्सिमम कंट्रोल रहेगा तभी वो प्रॉपर इंटीग्रेशन कर पाएगा, वो उसका थॉट प्रोसेस रहता है, ओके। एंड फर्दर वो चाहता है कि उसका रिस्क शेयरिंग जो है वो उसको सबसे कम करनी है, यानी कि उसका जो रिस्क यहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करने वाला है उसमें उसका रिस्क जो है वो मिनिमम रहे, उसके बारे में होता है। एंड फर्दर वो यहां पर अपनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हुए जो कंट्रोल है वो गेन करना चाहता है उसके अंदर। पर्टिकुलर जो मान लीजिए कि अगर ए ने बी को एक्वायर करना है तो बी ए कहता है कि मेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे यहां पर कंट्रोल मिल जाए बी का, उससे बढ़िया चीज क्या है। एंड फर्दर जो भी उसकी यहां पर ऑनरशिप होती है
ऑनरशिप होती है डेट इज थिंग कि वो एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करना चाहता है, क्योंकि वो सस्ती चीज है, वो सस्ती चीज है। जैसे मान लो कि ईसॉप के थ्रू या और किसी चीज के थ्रू हम ऑनरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो चीज हो गया। एंड फॉर दैट्स रिलेटेड टू द इंटीग्रेट टारगेट इमीडिएटली, यानी कि जो भी जब कभी आप एक्वायर करते हो साथ के साथ इसको इंटीग्रेट करना, प्रोसेस को साथ के साथ इसको इंटीग्रेट करना, दैट इज अ थिंग रिलेटेड इट, ये भी जरूरी होता है काफी। एंड फर्दर इंप्लीमेंट अर्न आउट प्रिजर्व टारगेट कल्चर एग्जिट बिजनेस इन 5 to 7 years, यानी कि हम उस बिजनेस की माइनॉरिटी पोजीशन को समझते हुए अगले 5 साल में उस बिजनेस से एग्जिट कर लेंगे। हमने अपने रिस्क को उसमें से मिनिमाइज करना है, टैक्स को मिनिमाइज करना है, एंड फर्दर जो लॉसेज हैं उनको हमने मिनिमाइज करना होता है। दैट इज द थिंग रिलेटेड इट। ओके, ये यहां पर क्या रहता है, दिस इज द एक्वायरर्स ऑब्जेक्टिव ओवर देयर। एंड पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के केस में देखें तो वहां पर वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब उसके केस में पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, जो पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रक्चर वो देखते हैं, एंड साथ के साथ उसमें क्या देखते हैं, पार्टनरशिप, तो उसके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के केस में होता क्या पर्टिकुलरली, जैसे मान लो कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीजें और कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां पर पार्टनरशिप कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। ओके, एंड एज अ पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी उसको रख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली यहां पर पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या बताया कि अगर आप मिनिमाइज रिस्क करना चाहते हो या शेयरिंग रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होनी चाहिए। ओके, कंट्रोल अगर मैं लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहता हूं तो होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि जिसमें यहां पर पर्टिकुलर 51% अगर ओनरशिप होगी, आपका कंट्रोल यहां पर हो गया, दैट्स द थिंग रिलेटेड, तो आप होल्डिंग कंपनी यहां पर बन जाओगे। एंड फर्दर अगर मैं एम्प्लॉइज को बेनिफिट देना चाहता हूं तो ईसॉप यहां पर इशू कर दो। एंड इसी तरह से अगर हम यहां पर इंटीग्रेट करना चाहते हैं इमीडिएटली, तो उसके केस में आपको कॉर्पोरेट या डिविजनल स्ट्रक्चर लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप यहां पर अर्न आउट प्रिजर्व करना चाहते हो तो उसके केस में होल्डिंग कंपनी बना लो। रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हो तो पार्टनरशिप्स कर लो, या फिर पर्टिकुलरली आप क्या कर लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी जो है वो से फॉर्म कर लो। ठीक है, तो इस तरह की हम चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ द सेलर ओवर हियर। तो सेलर के पॉइंट से समझते हैं कि क्या क्या चीज होती है। तो कॉस्ट एंड लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप एमएनडे करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एंड हम चाहते हैं बीइंग अ सेलर, हम चाहते हैं यहां पर कि हमारे पास ईज के साथ हम ऑनरशिप को ट्रांसफर कर पाए, एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो यहां पर एग्जिस्टेंस है वो यहां पर कंटिन्यूस रहे। ऐसा ना हो कि एक बार आपने यहां पर एमएनडे हो गया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो यहां पर पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस वही खत्म होगी, कंट्रोल मैनेजमेंट का रहे यहां पर। ठीक है, एंड फर्दर कन्वीनियंस रहे ऑफ ऑब्टेनिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगी तो उनको उनके पास वो कन्वीनियंस रहे। एंड फर्दर वो यहां पर इजीली के साथ इजीली एसिमुलेशन कर पाए सिस्टम के बारे में। एसिमुलेशन का मतलब होता है कि अगर उनको जानकारी चाहिए सिस्टम के बारे में कुछ, तो आसानी से वो सिस्टम के बारे में जानकारी उनको यहां पर मिल पाए। एंड फर्दर किस तरह से जो अर्निंग्स होंगी वो उनकी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो मैनर उनको पता हो। एंड इंडिविजुअलिटी का उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कोप उनका बना रहे, टैक्सेशन के बारे में उनकी जो गाइडलाइंस है वो उनको पता हो। तो ये व्यू पॉइंट होता है किसका, सेलर के बारे में होता है। एंड बायर जो है वो यहाँ पर बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करता है, यानी कि रिस्क क्या इसमें शामिल होने वाला है, फाइनेंसिंग क्या होगी, टैक्सेशन कितनी है, कंट्रोल कितना मिलेगा, एंड फर्दर किस तरह की लीगल एंटिटी है जिसके साथ वो कंट्रोल करने जा रहा है, एंड वो पोटेंशियल रिस्क को किस तरह से कम कर सकते हैं, अपनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस की जो स्कोप है उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, एंड जो टोटल अमाउंट स्पेंड होने वाला है एक्विजिशन के उसके ऊपर उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। ये यहाँ पर बायर का फैक्टर, मेन फैक्टर्स रहते हैं। ओके, एंड हम यहाँ पर एप्रोप्रिएट वो जो एक्विजिशन व्हीकल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट व्हीकल को जब हमने सिलेक्ट करना होता है तो यहां पर हमारे पास पर्टिकुलरली क्या होता है, एक्विजिशन व्हीकल होगी क्या, एक्विजिशन व्हीकल होगी जो आपको एक्वायर करने में हेल्प आउट कर रही है। अब वो यहां पर उसकी लायबिलिटी जो होगी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, यानी कि जो भी लायबिलिटी यहां पर रहेगी वो लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी कि क्या लायबिलिटी है इसकी पर्टिकुलरली एक्विजिशन को लेकर के, आपको फाइनेंसिंग किस तरह से वो कर रहे हैं, यहां पर फाइनेंसिंग आपको किस तरह से कर रहे हैं यहां पर एक्वायर करने के लिए, एंड कंटिन्यूटी ऑफ ओनरशिप किस तरह से रहेगी, आपकी ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से रहेगी, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन होगी टैक्स फ्री डील करने के लिए रिलेटेड तो फ्लेक्सिबिलिटी की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फॉर द ईसोप ना स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा इजी वे है जिसमें जो स्मॉल प्राइवेटली हेल्ड बिजनेसेस है ना वो ऑनर की इक्विटी को कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उसमें ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनको सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट यहां पर मिल पाए। यानी कि आप ऑनरशिप को राह रखते हुए ईसो पर्टिकुलरली इंप्लॉयज को इशू कर देते हैं, यानी कि इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो होते हैं वो यहां पर इशू कर देते हैं, उसके थ्रू आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है कंपनी की वो यहां पर कम हो जाती है, तो वो बर्डन कंपनी के ऊपर कम पड़ता है। ओके, दैट्स आई थिंक रिलेटेड टू इट। एंड फॉर द हमें अगर यहां पर सूटेबल पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना हो तो किस तरह ढूंढेंगे, तो हमारे पास एक चीज तो होगी एक्विजिशन व्हीकल जो रहेगी, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए।
क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, जैसे ही हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्वायर करते हैं, साथ के साथ हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दें उस कंपनी को, ठीक है, एक्वायर्ड कंपनी को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दें। एंड हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली ये सोचना होता है कि हमें कंसल्टिंग कंपनी की जरूरत है या नहीं है। अगर हमें तो इंटरनल बैंडविड्थ या टेक्निकल स्किल की दिक्कत आ रही है, यानी कि हमें हमें नहीं पता कि इंटरनली कैसे हमने इंटीग्रेट करना है, या फिर हमारे पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, तो उस इंटीग्रेशन के लिए आपके पास पोस्ट क्लोजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको कंसल्टिंग फर्म के साथ होना जरूरी पड़ेगा, ताकि आप पर्टिकुलरली इंटीग्रेट प्रॉपरली कर लो। ओके, हमें यहां पर प्री क्लोज कंसिडरेशन एंड रिक्वायरमेंट्स को ढूंढना होगा। प्री क्लोज कंसिडरेशन होती है जब डील क्लोज होने वाली है आपकी, तो आपकी क्या क्या कंसिडरेशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है, उनको हम आपके पास पता होना चाहिए कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें ये चीज हम चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट रिटेंशन क्या रहेगी, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एंड डिसीजन क्या कैसे होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कैसे डील करेंगे, टेक्नोलॉजी, सेल्स एंड ऑपरेशंस, ये सभी फैक्टर्स जो हैं जिस कंपनी में काम आते हैं, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन के बारे में है, चाहे वो लिटिगेशन एनवायरमेंट एंड टैक्स मैटर्स के ऊपर है, चाहे वो अकाउंटेंसी के ऊपर है, चाहे वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, चाहे वो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटरी हर्डल्स के ऊपर है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि ये वो चीज़ें हैं, ये प्री क्लोज आपकी जो कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट्स उनके बारे में आपको पता चाहिए। बट ये लिमिटेड नहीं है, और भी चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपके फर्म के कंप्लेक्सिटी एंड साइज कितना। ओके, एंड फर्दर आपको इंटीग्रेशन टीम के मेंबर्स को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको यहां पर दोनों कंपनीज में से, दोनों कंपनी जो आपस में मर्ज या एक्वायर होने वाली हैं, उनमें से आपको हाईली मोटिवेटेड एंड स्किल्ड इंप्लॉयज जो है वो यहां पर चूज करने होंगे इंटीग्रेशन टीम में डालने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलरली प्रॉपरली मैनेज कर पाए एंड प्रॉपरली आपस में आपकी इंटीग्रेशन जो है वो यहां पर हो पाए। ओके, एंड आपको यहां पर ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर आपके पास ये भी ना हो कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हो जाए आपकी इंटीग्रेशन टीम के बीच में, या कम हो जाए, जिसके थ्रू आपका जो यहां पर की टैलेंट है वो लूज ना हो जाए। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फर्दर आपको उन्हीं टीम मेंबर्स के जो फ्यूचर रोल होने वाले हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। एंड ज्यादातर क्या होता है, जो ये इंटीग्रेशन टीम्स होती है फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, इनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता यहां पर, तो उसके कारण से ये फेल हो जाती है। तो इनके पास फ्यूचर प्लान होना चाहिए, तो आपको यहां पर टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। एंड फर्दर आपको इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर को यहां पर प्लान करना पड़ेगा, यानी कि हम कौन सी एक्टिविटीज को, कौन से फंक्शंस को आपस में इंटीग्रेट करने वाले हैं, किस तरह से इंटीग्रेट करने वाले हैं, स्पेशलिस्ट कौन होंगे फंक्शन एरियाज के, एंड फर्दर वो सभी चीजें होंगी। पहले तो आपने इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे, फिर आप फाइनेंशियल आप स्पेशलिस्ट देखेंगे, जो स्पेशलिस्ट हैं उस फंक्शन एरिया में। जैसे मान लीजिए कि आईटी में कोई स्पेशलिस्ट है, लीगल में कोई स्पेशलिस्ट है, फाइनेंस में कोई स्पेशलिस्ट है, ठीक है, आप उनको ये टास्क देंगे आगे कि वो यहां पर तरीका बताएंगे कि टास्क किस तरह से इंटीग्रेट की जाएंगी, क्या उनकी आउटलाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से टास्क यहां पर बनाई जाएंगे उसके बारे में। ओके, अब इंटीग्रेशन का जो प्लान है वो क्लियर होना चाहिए, तभी वो डिपार्टमेंट जो वो यहां पर इंटीग्रेट हो पाएंगे। इस तरह से सोचिए, ये है फर्म ए, ये फर्म बी, अब फर्म ए ने फर्म बी के बीच में इंटीग्रेट करना है, यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अब वर्किंग भी डेफिनेटली अलग होगी, तो आपस में इंटीग्रेट किस तरह से होंगे मर्ज एक्वायर होने के बाद, उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। दैट इज अ फंडा रिलेटेड इट। ओके, एंड अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना टास्क के रिलेटेड, ये काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि उसके साथ ही आपका सक्सेस परसेंटेज जो मैटर करेगा अगर आपने अकाउंटेबिलिटी फिक्स की होगी। ओके, फॉर दैट्स रिलेटेड टू क्रिएट एन इंटरनल कम्युनिकेशन प्लान, आपको एक इंटरनल कम्युनिकेशन प्लान बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको नया तरीका बनाना पड़ेगा, हर एक लेवल के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। एंड फर्दर आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, टेक ओवर कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो किस तरह से डील करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि कम्युनिकेशन में कोई भी ढील ढाल ना रहे। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्दर आपका जो ओवरऑल मैसेज होना चाहिए, दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी कि जब हम अपने गोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, चेंजेस के बारे में, रिस्क के बारे में बता रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी चीजें हमारी वो कंसिस्टेंट चाहिए, वो डिफर नहीं करनी चाहिए। एंड हमें एक एग्जिट क्राइटेरिया प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो एग्जिट क्राइटेरिया होता है पर्टिकुलरली, वो टीम्स को, इंटीग्रेशन टीम्स को ये हेल्प आउट करता है कि हमने कब किस चीज को अकम्प्लिश करना है, कब किस चीज को अकम्प्लिश करना है, यानी कि किस चीज को अकम्प्लिश करना है और कब अकम्प्लिश करना है, कब उसे पूरा करना है, उस चीज के बारे में इंटीग्रेशन टीम को पता लग जाता है। तो वो यहां पर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि वो चीजें उनकी कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो ये एग्जिट जो क्राइटेरिया होता है, ये बेसिकली पता होना चाहिए। एंड ये आपके जो भी की प्रोसेसेस है, डिपार्टमेंट्स है, की डिपार्टमेंट्स, की प्रोसेसेस, यानी कि वो डिपार्टमेंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, काफी ज्यादा क्रूशियल है। ठीक है, वो प्रोसेसेस वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, लीगल, एचआर, आईटी,
आईटी सेल्स एक्सेट्रा, ये डिपार्टमेंट्स के अराउंड आपका एग्जिट क्राइटेरिया होगा कि इनकी क्या फंक्शनैलिटी कब करनी है, कैसे करनी है, उनके बारे में। ओके, एंड फर्दर करंट आपके ऑपरेशनल लॉसेस, टैक्स क्रेडिट, लॉस कैरी फॉरवर्ड, कैरी बैक्स क्या है, वो सभी के सभी आपने यहां पर ऑनर को पास आउट करने हैं। एंड फर्दर जब आपका बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ आपके एक तो बेनिफिट होता है कि आपकी जो डबल टैक्सेशन होती है वो खत्म हो जाती है। डबल टैक्सेशन पर्टिकुलरली क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी यहाँ पर इंडिया के बाहर थी, ठीक है, अब आपने इसको एक्वायर कर लिया, अब यहाँ की कंपनी, यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि इसकी टैक्सेशन तो यहाँ पर होगी, एंड इंडिया में कंपनी को आपने एक्वायर किया तो उसकी जो अर्निंग की टैक्सेशन यहाँ पर भी कर दी, तो यहाँ पर तो डबल टैक्सेशन होगी, टैक्स बाहर भी पे करना पड़ा एंड यहाँ भी पे करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की दिक्कत से निपटने के लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन जाती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट कंसीडरेशन। तो पेमेंट कंसीडरेशन कौन कौन सी होती है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली चीज है कैश, कैश में दे दो, सिंपल होती है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, आपकी सेलर टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो यहां पर बन जाती है। तो यहां पर अगर आप कैश में पेमेंट ले रहे हो तो सेलर की टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ओके, नॉन कैश फॉर्म ऑफ पेमेंट के बारे में देखें तो कॉमन इक्विटी यानी कि ईपीएस हो गया, वो पर्टिकुलरली दी जा सकती है, एंड लेकिन उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। ईपीएस होता है जैसे अर्निंग पर शेयर के हिसाब से आपको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी ईपीएस जो होती है, अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हो जाती है, कॉमन इक्विटी अगर आप पास आउट कर देते हैं, दे देते हैं आगे, लेकिन उसके साथ आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। एंड प्रेफर्ड इक्विटी अगर देते हैं, प्रेफर्ड इक्विटी देते हैं अगर यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, उस केस में पर्टिकुलरली क्या होता है, तो उसमें शेयर होल्डर का जो रिस्क होता है वो यहां पर कम हो जाता है लिक्विडेशन के केस में, इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट होती है। अगर कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक की बात करें तो यहां पर डेफिनेटली आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स के एंड कॉमन इक्विटी दोनों की गुणवत्ता रहती है, यानी कि कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ फंडामेंटल। तो मेन जो आपके नॉन कैश फॉर्मेट उसकी बात कर रहे हैं। फर्दर डेप्ट की फॉर्म में हो सकता है, डेप्ट की फॉर्म में आप सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड डेप्ट जो होता है उसके केस में हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये लॉर इसमें बैठी बेसिकली लिक्विडेशन के केस में रिस्क जो होता है वो यहाँ पर कम होता है। अगर रियल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको रियल जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी, एंड इसमें टैक्स एडवांटेज होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैश एंड स्टॉक का मिक्स भी हो सकता है, एंड दैट कैन बी द थिंग दैट कैन बी देयर। ओके, वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है कि डील को क्लोज करना है एंड रिस्क को सबसे ज्यादा कम करना है, टैक्सेशन को कम करना होता है ताकि टैक्सेस की जिम्मेदारी हमारी सबसे कम रहे। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो सेलर का मेन मकसद क्या रहेगा कि मैं डील को मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में क्लोज कर दूं, एंड फर्दर मेरे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटीज हैं वो मिनिमम टू मिनिमम रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पर फंडा यहाँ पर रहता है, लेकिन वो कंडीशन टू कंडीशन यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, अब फर्दर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर प्राइस एंड रिस्क मिटिगेशन करनी है, गैप एंड प्राइस को मिटिगेशन करनी है, तो उसके केस में बैलेंस शीट एडजस्टमेंट हो सकती है, यानी कि बैलेंस शीट की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, उसमें एडजस्टमेंट दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली उसमें एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी। जैसे ही कंपनी को लिक्विडेट होती है या कोई सेल ऑफ होती है तो उनके केस में वो आपके फेयर प्राइजेस के ऊपर चलती हैं। ओके, एंड साथ के साथ अर्नआउट्स और कंटिंजेंट पेमेंट, यानी कि ये हो सकता है ना कि आगे कुछ पेमेंट करने वाली पेंडिंग हो जो कंटिंजेंट हो सकती है किसी कंपनी के ऊपर, जिसको लेट्स से केस कि ए कंपनी बी को एक्वायर करने वाली है, हो सकता है कि इसके ऊपर आगे आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत पड़ जाए। अब ए को तो पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, तो डेफिनेटली इसकी दिक्कत भी आ सकती है। एंड फर्दर यहाँ पर कुछ एक राइट्स हो सकते हैं, रॉयल्टीज हो सकती हैं, फीस हो सकती हैं जो इसने कमिट करी हो, इसने पे करनी है एंड इसको पे करनी पड़ रही हो, ठीक है, तो उसके केस में भी यहाँ पर इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर पड़ सकता है। ओके, तो ये आपको रिस्क मिटिगेशन करनी पड़ेगी। एंड कॉलर अरेंजमेंट होते हैं कई बार। कॉलर अरेंजमेंट बेसिकली क्या केस होता है, जहां पर एक्वायरर के शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी रही है, यानी कि पिछले टाइम में एक्वायरर का जो शेयर प्राइस था उसमें वॉलेटिलिटी रही है, वो स्टेबल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ की दिक्कत भी यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। इन चीज़ों से निपटना काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन जाता है। फॉर दैट्स रिलेटेड टू कैश फॉर एसेट एक्विजिशन ओवर देयर। अब एक्वायरिंग फर्म जो होती है, अगर वो यहाँ पर जिस फर्म को एक्वायर करने वाले हैं उस फर्म के लिए अगर वो कैश पेमेंट करते हैं कुछ एक एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, सभी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, लेकिन या फिर किसी भी लायबिलिटी को एक्वायर ना करने के लिए अगर वो कैश पेमेंट करते हैं, तो उसके केस में यहाँ पर जो टारगेट फर्म होगी वो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी एंड शेयर होल्डर्स वो वोट नहीं कर पाएंगे, बट बिकॉज दोज आर कैश आउट, बिकॉज उनको कैश मिल चुका है उसके बदले में, यानी कि उनके स्टॉक के बदले में उनको मिल चुका है, ठीक है, यानी कि एसेट परचेज कर लिया अपने सारे के सारे, उसके बदले में उनको कैश मिल गया। दैट इज द थिंग रिलेटेड फॉर इट्स रिलेटेड टू स्टॉक फॉर एसेट एक्विजिशन।
स्टॉक फॉर एसेट एक्विजिशन, यानी कि जब यहां पर आप एसेट को एक्वायर करने के लिए, जैसे बी कंपनी है, आप बी कंपनी के एसेट को एक्वायर करने के लिए स्टॉक ऑफर करते हो, ओके। तो एक्वायरर जो है वो यहां पर शेयर्स ऑफर करता है अपने, यानी कि कुछ एक एसेट्स को या सभी एसेट्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो यहां पर शेयर्स ऑफर करता है। तो अगर यहां पर एक्वायरर जो है वो सारे के सारे एसेट्स को यहां पर एक्वायर कर लेता है एंड फर्दर वो यहां पर सारी की सारी लाइबिलिटीज को भी समझता है, तो दैट बेसिकली मीन्स टू व्हाट, कि वो तो हो गया आपस में मर्जर ही हो गया। जैसे हमने एक एग्जांपल करी थी पिछले कुछ एक चैप्टर्स में, डेट वाज रिलेटेड टू कि इसके 10 लाख शेयर थे एंड जो कंपनी मर्ज करने वाली थी उसके 20 लाख शेयर थे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि हमारा एक शेयर आपके 2 शेयर्स के बराबर है, तो हम आपको 5 लाख शेयर इशू कर देंगे। तो डेट वाज द थिंग, वो मर्जर से रिलेटेड ही था ना, तो वही चीज यहां पर हो रही है, ओके। अब यहां पर जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर होती हैं, वहां पर पर्टिकुलरली क्या फंडा रहता है कि अगर जिस कंपनी ने शेयर्स को एक्सेप्ट की है, यानी कि बी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने शेयर्स को एक्सेप्ट की है एंड ये जो नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए हैं, इनका जो क्वांटिटी है, अगर जिस कंपनी को एक्वायर करने के लिए इशू किए गए हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स के 20% या उससे ज़्यादा है, उसके केस में जो लिस्टिंग यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है वो एक कंफर्मेशन मांगेगी एक्वायरिंग कंपनी के शेयर होल्डर से कि क्या ये चीज़ सही हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। उसके रिलेटेड यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, एक्विजिशन का। दैट इज अ थिंग रिलेटेड, ओके। एंड फर्दर टारगेट शेयर जो होंगे, टारगेट से शेयर होल्डर होंगे, उन्हें यहां पर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना पड़ेगा, उनको यहां पर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना पड़ेगा अगर सभी के सभी एसेट्स यहां पर सोल्ड हुए हैं या फिर कुछ एक एसेट जो हैं वो यहां पर सोल्ड हुए हैं, क्योंकि आपने एसेट्स को यहां पर एक्वायर किया, किसके बदले में, स्टॉक्स के बदले में एक्वायर किया। तो यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना पड़ेगा, ओके। फर्दर रिलेटेड टू कैश फॉर स्टॉक एक्विजिशन, जहां पर आप कैश दे रहे हो स्टॉक की एक्विजिशन करने के लिए, ओके। तो एक्वायरर जो है वो यहां पर क्या करेगा, वो टारगेट कंपनी के स्टॉक जो है वो कैश के साथ परचेज करना चाहता है डायरेक्टली फ्रॉम द टारगेट शेयर होल्डर्स, यानी कि मैं टारगेट कंपनी बी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कांटेक्ट करूंगा एंड फर्दर उनसे डायरेक्टली कैश दे करके उनको जो शेयर्स हैं वो परचेज कर लूंगा एंड फर्दर मैं यहां पर होली ओन्ड या फिर पार्शली ओन्ड सब्सिडरी की तरह काम करना चाहता हूं, यानी कि कंपनी को चलाना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली शेयर्स परचेज कर रहा हूं, ओके। दैट्स अ फंडा रिलेटेड। फर्दर रिलेटेड टू स्टॉक फॉर स्टॉक एक्विजिशन, यानी कि शेयर होल्डर्स को हम स्टॉक ही देंगे, अपने खुद के स्टॉक दे देंगे, पैसा नहीं देंगे, ठीक है। एक्वायरर जो है वो यहां पर टारगेट के स्टॉक डायरेक्टली परचेज कर लेता है शेयर होल्डर से, वो यहां पर पर्टिकुलरली उनको क्या कहता है, उनको यहां पर अपनी कंपनी के शेयर देता है, तो वो उस कंपनी को यहां पर पर्टिकुलरली सब्सिडरी की तरह चलाना चाहता है या फिर पेरेंट कंपनी की तरह उनको चलाना चाहता है। सब्सिडरी पर्टिकुलरली क्या होता है, पेरेंट सब्सिडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जहां पर ए जो है वो पेरेंट बन जाएगी, जो बी कंपनी है वो यहां पर सब्सिडरी बन जाएगी, ठीक है। दोनों में फर्क है, जहां पर तो कैश दिया वहां पर ओन्ड, पार्शली ओन्ड या फिर होली ओन्ड बन गई, लेकिन जहां पर शेयर्स दिए वहां पर ये शेयर होल्डर्स बेसिकली इसके बन गए। अब यहां पर पर्टिकुलरली क्या होगा, ये यहां पर पर्टिकुलरली इसके पास केस क्या बन गया कि यहां पर पेरेंट सब्सिडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द 2 स्टेज स्टॉक ट्रांजैक्शंस ओवर देयर। 2 स्टेज जो आपकी स्टॉक ट्रांजैक्शन होती है, इस केस में आपके पास जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एक्वायरर है वो यहां पर टारगेट स्टॉक को क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है। टारगेट स्टॉक को परचेज नहीं कर लेता, एक्वायर कर लेता है, यानी कि वो टेंडर देता है, यानी कि जैसे जिसके थ्रू वो पर्टिकुलरली पार्शली ऑन्ड या होली ऑन्ड सब्सिडरी बनाना चाहता है उसके थ्रू एक टेंडर देता है। लेट्स से देखिए इसकी यहां पर ए ने एक टेंडर दे दिया, ए ने यहां पर एक टेंडर दे दिया, क्योंकि यहां पर बी कंपनी में ये अपना कंट्रोल जो है वो यहां पर इंक्रीज करना चाहता है, उसके लिए इसने यहां पर टेंडर दे दिया, राइट। अब यहां पर इसने क्या किया, जो टेंडर यहां पर दिया वो पर्टिकुलर टेंडर देते हुए अब यहां पर इसने इस स्टॉक को यहां पर एक्वायर करना था, इसने यहां पर टेंडर दे दिया कि इसके स्टॉक को एक्वायर करना चाहता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ओवर देयर, वो यहां पर पहली स्टेज होगी, ओके। सेकंड स्टेज पर्टिकुलर में क्या होगा कि एक्वायरर जो है वो यहां पर एक पार्शली ओन्ड सब्सिडरी जो होती है, वो यहां पर पार्शली ऑन सब्सिडरी जो होती है वो होली ऑन सब्सिडरी में मर्ज कर देगा एंड फर्दर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको कैश या पर्टिकुलरली जो डेप्ट है वो तो कैंसल्ड शेयर्स वो यहां पर प्रोवाइड कर देगा। यानी कि पर्टिकुलरली हुआ क्या कि पहले एक टेंडर देने के बाद ए ने यहां पर क्या किया, इस कंपनी के जो स्टॉक थे उनको एक्वायर कर लिया। ये चीज क्लियर होगी, ये एक्वायर हो गया। अब ये एक्वायर जब कर लिया तो यहां पर या तो पार्शली ओन्ड और सब्सिडरी बन गई, इसकी जो बी थी या तो इसकी पार्शली ओन्ड सब्सिडरी बन गई या होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई,
बी जो है अब यहां पर ए की पार्शली ओन्ड सब्सिडरी बन गई या होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई। उसके बाद ए ने क्या किया सेकंड फेज में, यहां पर पर्टिकुलरली एक माइनॉरिटी जो यहां पर पर्टिकुलरली आपके पास क्या थी, एक जो आपके पास पार्शली ओन्ड सब्सिडरी थी, जो पार्शली ऑन सब्सिडरी थी उसको यहां पर होली ऑन सब्सिडरी के साथ क्या कर दिया, यहां पर मर्ज कर दिया। देखिए कंट्रोल यहां पर ऑलरेडी आ गया, ए के पास ऑलरेडी कंट्रोल यहां पर आ चुका है बी का, ठीक है। अब यहां पर उसके बाद ए ने क्या किया, लेट्स से केस कि बी को यहां पर ए के साथ, यहां पर बी ने यहां पर अपनी किसी और सब्सिडरी के साथ सी के साथ यहां पर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। एंड यहां पर जो इसके शेयर होल्डर्स थे उनको यहां पर पर्टिकुलरली इसके बदले में या तो डेप्ट दे दिया, इनकी शेयर्स इनके कैंसिल होने थे, उसके बदले में या तो इनको या तो बॉन्ड्स इशू कर दिए या फिर उसके बदले में यहां पर इनको कैश दे दिया, ठीक है। तो दैट वुड बी द थिंग रिलेटेड इट, दैट वुड बी द थिंग रिलेटेड इट। इसको कहते हैं फ्रीज आउट और स्क्वीज आउट, इसको कहते हैं फ्रीज आउट और स्क्वीज आउट। यानी कि पहले कंट्रोल ले लिया, उसके बाद पार्शली ऑन सब्सिडरी को होली ऑन सब्सिडरी के साथ मर्ज कर दिया एंड अल्टीमेटली जो बाकी के शेयर होल्डर्स थे उनको भी बाहर निकाल दिया। ओके, दैट्स द फंडा रिलेटेड इट। ओके, इसको कहते हैं टू स्टेज स्टॉक ट्रांजैक्शंस ओवर देयर। ओके, फर्दर इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द ट्रायंगुलर एक्विजिशंस ओवर देयर। ट्रायंगुलर एक्विजिशन के केस में क्या होता है, एक्वायरर यहां पर होली ऑन सब्सिडरी जो है वो यहां पर क्रिएट करता है, होली ऑन सब्सिडरी जो होगा एक्वायरर यहां पर क्रिएट करेगा एंड फर्दर इसको मर्ज कर देता है टारगेट के साथ, इसको टारगेट के साथ क्या कर देता है, मर्ज कर देता है यहां पर टारगेट के साथ। अब इसमें से क्या रहेगा, या तो पर्टिकुलरली टारगेट रहेगा या फिर सब्सिडरी जो होगी वो यहां पर सर्वाइव करेगी, दोनों में से। या तो ये होली ऑन सब्सिडरी यहां पर रहेगी या फिर ये जो टारगेट है ये यहां पर सर्वाइव करेगा। दैट इज अ ट्रायंगुलर एक्विजिशन ओवर देयर, दैट इज अ ट्रायंगुलर एक्विजिशन ओवर देयर। यानी कि कुछ एक कंट्रोल यहां पर पहले इसमें ले लिया, उसके बाद यहां पर होली ऑन सब्सिडरी क्रिएट करी, फिर दोनों को आपस में यहां पर इन दोनों को मिला दिया। अब यहां पर या तो होली ऑन सब्सिडरी यहां पर सर्वाइव करेगी या फिर टारगेट जो यहां पर थी कंपनी वो सर्वाइव करेगी। दैट इज अ ट्रायंगुलर एक्विजिशन ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले सबसे पहले टैक्स एंड अकाउंटिंग कंसीडरेशंस के बारे में। ओके, तो टैक्स कंसीडरेशन पर्टिकुलरली क्या होती है कि आपको टैक्स स्ट्रक्चर यहां पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन में आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। अगर यहां पर जो कंपनी है उसको सेल किया जाता है तो कौन सी आपकी यहां पर ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। ओके, एंड फर्दर आपके बहुत से जो डिसीजन होते हैं वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करते होते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ आपका अकाउंटिंग कंसर्न भी इसके साथ जुड़ा होता है कि आपकी जो डील होने वाली है, स्ट्रक्चर का डील का होने वाला है, उसके हिसाब से आपके ऊपर कितना टैक्स पड़ने वाला है। ओके, एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इसके साथ एक थ्रेट बनता है, क्योंकि अगर टैक्सेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी तो उसके केस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहां पर कम हो जाएगी। एंड फर्दर ये एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक्वायरर के ऊपर भी आने वाले टाइम में टैक्सेबिलिटी पड़ सकती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अल्टरनेटिव टैक्स स्ट्रक्चर्स ओवर देयर। तो जब भी हम यहां पर एक्विजिशन के केस की बात करते हैं तो टैक्स इंप्लीकेशन जो होती है वो आपके पास सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम क्रूशियल होती है, क्योंकि बायर का जो यहां पर प्राइमरी कंसर्न होता है वो यहां पर किसके बेसिस पर होता है, वो यहां पर होता है कि हमने एसेट्स को एक्वायर करना है, हमने यहां पर किसी भी तरह के टैक्स जो इश्यूज आएंगे उनसे हमने बचना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी को निकालना है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड होगा, वो यहां पर सेलर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि सेलर के पास सभी की सभी चीजें हैं तो टैक्स के साथ भी सेलर ही डील करेगा। ओके, टैक्स बेसिस पर्टिकुलरली क्या होता है, टैक्स बेसिस इज अ लेवल जहां पर पर्टिकुलरली जो भी यहां पर आपके पास एसेट होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली डेप्रिशिएट होता है या फिर उसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है, फ्यूचर टैक्सेबल गेन्स आपके डिटरमाइन होते हैं एंड बायर उसको रियलाइज करता है, तो उसके केस में यहां पर टैक्स बेसिस क्या रहेगा कि बायर को उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से द केस यहां पर एक पॉइंट को समझते हैं। मेरे पास एक एसेट था जिसको हमने एक्वायर किया 1 लाख रुपए ऊपर एंड फॉर दिस को डेप्रिशिएट करते करते जो इसकी बुक वैल्यू यहां पर हमारे पास रह गई है दैट इज 40,000 रुपीज। ओके, 40,000 की इसकी यहां पर बुक वैल्यू रहेगी। लेकिन जब यहां पर इसको सेल किया गया, लेट्स से केस जो यहां पर सेलर है वो इसको इसकी वैल्यू करता है, फेयर वैल्यू निकालता है एंड इसको सेल करता है यहां पर 60,000 रुपीज में। ओके, तो यहां पर वो टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी ले चुका, कितने के ऊपर, यहां पर वो 60,000 की वैल्यू के डेप्रिसिएशन के ऊपर ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट ले चुका है। ओके, तो यहां पर ये 20,000 की वैल्यू जो एक्सीड कर गई है वो यहां पर क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। एंड इसके ऊपर क्योंकि इसको गेन मिला, कितने का गेन मिला, बुक वैल्यू थी 40,000 की एंड फर्दर अभी उसने कितने में सेल किया, 60,000 में सेल किया, तो गेन कितना मिला यहां पर, गेन मिला यहां पर 20,000 का। तो 20,000 के ऊपर उसके यहां पर जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा एंड टैक्स बेसिस ये लेवल रहता है। ओके, आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्दर सेलर का कंसर्न होता है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन जो है उसको स्ट्रक्चर किया जाए ताकि जो पेमेंट है टैक्सेस की उसको पोस्टपोन किया जा सके, ताकि उसको पोस्टपोन कर ले। ठीक है, दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं। फर्दर रिलेटेड टू टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस ओवर देयर। ट्रांजैक्शन पर्टिकुलरली वो टैक्सेबल कंसीडर की जाती है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहां पर
अगर यहां पर मेजॉरिटी ऑफ कंसीडरेशन जो है या तो कैश की फॉर्म में दी गई है या फिर डेप्ट की फॉर्म में दी गई है अदर देन द इक्विटी ओवर दिया, तो अगर इक्विटी को छोड़ करके अगर जो पेमेंट है वो कैश की फॉर्म में दी गई है या फिर डेप्ट की फॉर्म में दी गई है, उसी के केस में सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शन है वो टैक्सेबल रहेगी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी ओवर दिया, यानी कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर उसका तब इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर यहां पर जो पेमेंट की गई है वो यहां पर डेप्ट की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में की गई है अदर देन द इक्विटी ओवर देयर, यानी कि स्टॉक को देकर के चीजों को एक्वायर नहीं किया यहां पर बायर ने, उसने यहां पर कैश के बदले में या फिर डेप्ट के बदले में यहां पर एक्वायर किया। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू टैक्सेबल मर्जर्स ओवर देयर, टैक्सेबल मर्जर्स ओवर हियर। जो आपके पास डायरेक्ट स्टेचुटरी स्टॉक मर्जर होता है उसके केस में क्या होता है, जो भी आपके एसेट्स होते हैं, जो लायबिलिटीज होते हैं यहां पर, ठीक है, वो सीधा सीधा जो कंपनी यहां पर रहने वाली है, बाकी रहने वाली है, उसमें सीधा मर्ज होता है, उसमें तो सारी की सारी लायबिलिटी उसके ऊपर होगी। ठीक है, जो आपके पास ट्रेंगुलर मर्जेस होते हैं उसके केस में ये पर्टिकुलर एक तरीका होता है, एक टेक्टिक होता है विच इज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय द एक्वायरर, जिसमें एक्वायरर क्या करता है, वो अपने आप को सेफगार्ड करता है कि वो यहां पर टारगेट की जो लायबिलिटीज होती है ना उनके अगेंस्ट वो स्टैंड नहीं करेगा। ट्रेंगुलर के केस में हुआ क्या था कि यहां पर एक होली ओन्ड सब्सिडरी को उसने क्या किया, मर्ज कर दिया यहां पर दूसरी कंपनी के साथ, यानी कि टारगेट कंपनी के साथ यहां पर मर्ज कर दिया। ठीक है, एंड यहां पर अब इसमें से यहां तो टारगेट रहेगी या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी रहेगी, लेकिन डायरेक्ट लायबिलिटी यहां पर इसके ऊपर नहीं है, एक्वायरर के ऊपर नहीं है, दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। अब यहां पर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में समझते हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है दैट्स रिलेटेड टू द फॉरवर्ड ट्रायंगुलर कैश मर्जर ओवर दिया। फॉरवर्ड ट्रायंगुलर कैश मर्जर के केस में जो टारगेट कंपनी है वो यहां पर मर्ज होती है एक्वायरर के ऑपरेशन के साथ, एक्वायरर के ऑपरेटिंग जो शेल एक्विजिशन है उसके साथ, यानी कि यहां तो पहले वो कंपनी चल रही होगी या होली ओन्ड सब्सिडियरी जैसे मैंने बताया, या एक शेल कंपनी होगी। शेल कंपनी क्या होती है, लगती है कि कंपनी एक्चुअल में कंपनी होती नहीं है। ओके, एंड फर्दर वो पर्टिकुलरली इसमें क्या होगा कि जो आपके पास सब्सिडरी कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी है वो चलती रहेगी, जो एक ऑपरेटिंग कंपनी थी यहां पर किसकी, एक्वायरर की ऑपरेटिंग कंपनी जो थी वो यहां पर चलती रहेगी, जो यहां पर टारगेट कंपनी थी उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। ओके, ये होती है आपकी फॉरवर्ड ट्रायंगुलर कैश मर्जर। एंड फर्दर दूसरी टाइप होती है इसकी रिवर्स ट्रायंगुलर कैश मर्जर। रिवर्स ट्रायंगुलर कैश मर्जर के केस में जो आपकी यहां पर सब्सिडरी थी ये खत्म हो जाएगी एंड जो टारगेट कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस आगे चलती रहेगी। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। इन दोनों ही केसेस में यहां पर जो एक्वायरर है वो एक शील्ड की तरह करता है एंड अपने आप को लायबिलिटी से सेफगार्ड करता है, यानी कि जो टारगेट कंपनी है उसकी लायबिलिटीज उसके ऊपर नहीं पड़ती है। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू टैक्सेबल कैश परचेज ऑफ द टारगेट एसेट्स ओवर देयर, टैक्सेबल कैश परचेज। मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर जो एक्वायरर है वो कैश परचेज करता है तो टैक्सेबल यहां पर बनेगा ही बनेगा। ओके, तो टारगेट कंपनी जो है, टारगेट कंपनी का जो टैक्स कॉस्ट है वो यहां पर किस बेस पर होगा, यानी कि एक्वायर्ड कॉस्ट जो एसेट्स हैं, एक्वायर्ड एसेट के यहां पर अगर फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा तो जो बुक वैल्यू से जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, बुक वैल्यू से जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर यहां पर गेन टैक्स जो होगा वो यहां पर पे करना पड़ेगा। दैट इज अ थिंग रिलेटेड। ओके, तो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। तो ये तब होगा जब यहां पर कैश परचेज होती है। तो कंपनी जो है, जो कंबाइंड कंपनीज होती हैं वो यहां पर अपनी करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, अगर कंपनी देखो यहां पर कंबाइन हो गई है उसके केस में क्या होगा, वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन डालेंगी तो इस करंट ईयर में उनकी जो टैक्सेशन होती है, जो टैक्स पड़ेगा वो पर्टिकुलरली कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन जो है वो कम चार्ज करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में, तो डेफिनेटली उनका जो यहां पर टैक्स लायबिलिटी होगी वो यहां पर कम हो जाती है, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होगी वो आगे आने वाले सालों में यूज की जाएगी। तो गेन और लॉस क्या होता है, जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो एंड फर्दर माइनस द नेट बुक वैल्यू, जो नेट बुक वैल्यू थी वो, तो ये आपका गेन होगा या फिर लॉस होगा उसके बारे में, उसके हिसाब से आपकी जो टैक्सेशन होती है वो यहां पर तय होती है। ओके, फर्दर रिलेटेड टू टैक्सेबल कैश परचेज ऑफ टारगेट स्टॉक। ठीक है, जब एक कंपनी होती है वो यहां पर एसेट्स को बाय करती है, उसके केस में यहां पर पर्टिकुलरली उनको क्या होता है, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि अगर कंपनी को कोई भी गेन हुआ है यहां पर किसी एसेट को सेल करने के ऊपर, तो उसके ऊपर जो गेन हुआ होता है उसके हिसाब से सेलिंग कंपनी को यहां पर टैक्स पे करना पड़ता है। एंड साथ के साथ एक और टैक्स पे करना पड़ता है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, अगर कंपनी जो है वो यहां पर आफ्टर टैक्स अर्निंग्स पे करती है शेयर होल्डर्स को, आफ्टर टैक्स जो यहां पर एक अर्निंग्स है, वो आफ्टर टैक्स अर्निंग्स है वो पे करती है किसको, शेयर होल्डर्स को पे करती है, उसके ऊपर कंपनी को अलग से यहां पर एक टैक्स पे करना पड़ता है। दैट इज अ फंडा रिलेटेड। यानी कि एक तो ये हो गया कि आपने अपने एसेट को सेल किया,
आपने अपने एसेट को सेल किया तो यहां पर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो यहां पर नेट बुक वैल्यू से जितना ज्यादा इंक्रीज हुई उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड जब आप इस वैल्यू को, जो बाकी की बची कुछ वैल्यू रह गई है, जब प्रॉफिट रह गया जो, ठीक है, उसको जब आप शेयर होल्डर्स में आगे बांटोगे तो उसके केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे यहां पर अलग से करना पड़ेगा। जबकि अगर आप यहां पर शेयर होल्डर्स, अगर यहां पर पर्टिकुलरली क्या है, अगर आप यहां पर सेल करते हो यहां पर स्टॉक के थ्रू, यानी कि परचेज करते हो टारगेट स्टॉक को, कैश परचेज ऑफ द टारगेट स्टॉक ओवर देयर, उसके केस में वो टैक्स जो होता है वो आपका सेफगार्ड हो जाता है, उसके केस में आपका टैक्स जो है सेफगार्ड हो जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि अगर शेयर होल्डर जो होते हैं टारगेट कंपनी के, उनको प्रॉफिट या लॉस होता है किसके थ्रू, अगर वो अपने स्टॉक को डायरेक्टली सेल कर देते हैं, अगर अपने स्टॉक को डायरेक्टली सेल कर देते हैं ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, एंड फॉर दैट इट्स रिलेटेड टू टैक्स फ्री ट्रांजैक्शंस, टैक्स फ्री ट्रांजैक्शंस ओवर देयर। जब यहां पर प्राइमरी फॉर्म जो रहता है वो एक्वायरर का स्टॉक रहता है, जिसके केस में ए ने अपने स्टॉक इशू कर दिए यहां पर बी को, एंड फर्दर एक्वायर कर लिया यहां पर बी को, ठीक है। उसके केस में जो ट्रांजैक्शन रहती है ना, क्योंकि इसने क्या दिया है, इसने यहां पर स्टॉक दिए हैं, स्टॉक का अभी प्रॉफिट कोई रियलाइज नहीं हुआ है, तो उसके केस में जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, दैट विल बी द टैक्स फ्री ट्रांजैक्शन ओवर देयर, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन ओवर देयर, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनके ऊपर पार्शियल टैक्सेशन पड़ सकती है। किस केस में पड़ सकती है, अगर जो टारगेट कंपनी के यानी कि बी कंपनी के जो यहां पर शेयर होल्डर्स हैं उनको यहां पर शेयर्स के अलावा अगर और कुछ बेनिफिट मिलता है, शेयर्स के अलावा अगर, यानी कि ए कंपनी ने अपने शेयर्स दी वो तो मिल गए, उनके अलावा अगर और कुछ बेनिफिट यहां पर शेयर होल्डर्स को मिला तो उसके केस में यहां पर पार्शियल टैक्सेशन इनके ऊपर पड़ सकती है। अदरवाइज ये जो ट्रांजैक्शन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए ने अपने स्टॉक्स दिए हैं उसके केस में वो टैक्सेशन के अंडर नहीं आती है। ओके, एंड फर्दर दिस नॉन इक्विटी कंसीडरेशन जो यहां पर दी गई है शेयर होल्डर्स को, नॉन इक्विटी कंसीडरेशन क्या होगी, जैसे मैंने बताया एक तो स्टॉक दे दिए, लेकिन अगर स्टॉक के अलावा कुछ और दिया तो क्या, उसको क्या कहते हैं, दैट इज सेट द नॉन इक्विटी कंसीडरेशन, दैट इज सेट टू बी द नॉन इक्विटी कंसीडरेशन, एंड उसको बूट के नाम से भी जाना जाता है। एंड जैसे रेगुलर इनकम के ऊपर आपको टैक्सेशन पड़ती है, सेम टैक्सेशन यहां पर आपको उसको उसके ऊपर भी पड़ेगी। एंड फर्दर इसके साथ आपकी जो न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स है, अब उनके फेयर मार्केट वैल्यू उसके एसेट्स में के बीच में कोई भी वैल्यू में इंक्रीज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है आपने बी कंपनी के जो एसेट्स एक्वायर किए वो सेम कॉस्ट के ऊपर एक्वायर होंगे, सेम बुक वैल्यू के ऊपर एक्वायर होंगे, वो यहां पर आपके उसके कॉस्ट के बीच में कोई भी इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इनकेस आपने एक्विजिशन जो की है वो यहां पर स्टॉक के थ्रू करी है। ओके, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द अदर टैक्स कंसीडरेशंस अफेक्टिंग द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कौन कौन सी टैक्स कंसीडरेशंस जो अफेक्ट करती है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू एनुअल, दैट इज अ नेट ऑपरेटिंग लॉसेस ओवर देयर, net operating losses over there, that's actually related to what it is produced whenever a company has a negative taxable income, यानी कि जब कंपनी की नेगेटिव टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम कोई है ही नहीं है, यानी कि कंपनी लॉस में है, उसके केस में यहां पर नेट ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, तो वो पर्टिकुलर केस क्या होगा, अब उसके केस में लॉसेज होते हैं आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखिए कंपनी जो होती है ना वो अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, अगले एक 20 साल के पीरियड के लिए इनको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर की जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर पाए। किस तरह से, लेट्स से एक कंपनी का लॉस जो था वो यहां पर इस करंट ईयर में 10 लाख का था, ठीक है, अगले साल में इनकी इनकम हुई 12 लाख की, ठीक है, लेकिन पिछले साल का 10 लाख का लॉस था, तो यहां पर नेट जो यहां पर इनकी इनकम मानी जाएगी वो 2 लाख की मानी जाएगी, यानी कि इनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 2 लाख के ऊपर ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द कैरी फॉरवर्ड, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। एंड फॉर दैट रिलेटेड टैक्स रिलीफ एंड बेनिफिट, क्या क्या टैक्स रिलीफ एंड बेनिफिट मिलते हैं अमलगमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में, एंड दोज आर कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओवर देयर, उसके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम यहां पर अमलगमेटिंग कंपनी, देखिए दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है अमलगमेटिंग कंपनी, लेट्स से केस की ए एंड बी है, एंड फर्दर बी जो है वो यहां पर अमलगमेट होने वाली है, तो उसके केस में ये भी हो गई अमलगमेटिंग कंपनी में, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका बार बार यूज होगा इसमें। ओके, एंड फर्दर एक फर्म यहां पर बन जाएगी, जब बी इसमें अमलगमेट हो जाएगी तो एक फर्म यहां पर बन जाएगी, नई एंटिटी बन गई, ए ही रहेगी, चाहे उसका नाम ए भी हो सकता है, नया नाम भी हो सकता है, उसके केस में वो नई कंपनी बनेगी, दैट इज अमलगमेटेड कंपनी, दैट इज अ अमलगमेटेड कंपनी ओवर देयर, ठीक है। तो ये आप यहां पर नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखेंगे। अभी हम बात करने वाले रिलेटेड टू टैक्स रिलीफ, यहां पर अमलगमेटिंग कंपनी को क्या क्या एग्जम्पशन मिलती है कैपिटल गेन टैक्स के केस में, एंड दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 6 ओवर देयर। ओके, अगर आप यहां पर पर्टिकुलरली अपने जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करते हो,
उनको ट्रांसफर करते हो किसी और इंडियन अमलगमेटेड कंपनी में, ठीक है, तो उसके केस में आपके ऊपर कोई भी यहां पर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि जो दूसरी कंपनी होनी चाहिए जिसमें आप अमलगमेट होने वाले हो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। यानी कि कैपिटल गेन अगर आपको होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट करने में, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसेट करने में, जैसे बी कंपनी ने यहां पर अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, ए कंपनी के पास एसेट को ट्रांसफर कर दिया, एंड उसके केस में यहां पर ए कंपनी जो थी दैट इज पर्टिकुलरली इंडियन कंपनी, वो यहां पर एक इंडियन कंपनी है, उसके केस में इनको यहां पर कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो यहां पर नहीं पड़ेगा। क्या क्या कंडीशंस है? 2 कंडीशंस है सिर्फ जो यहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि स्कीम ऑफ एमलगमेशन जो है वो यहां पर कंडीशंस जो बताई गई थी सेक्शन 2(1)(b) में उनको सेटिस्फाई करते हो, यानी कि एमलगमेशन की जो कंडीशंस बताई हैं उनको सेटिस्फाई कर दियो। जो मेन कंडीशन है दैट्स रिलेटेड टू एमलगमेटेड कंपनी, यानी कि जो नई यहां पर एंटिटी बन रही है दोनों को मिलाने के बाद वो यहां पर एक इंडियन कंपनी हो, उसके केस में यहां पर ये रियायत दी गई है। ओके, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटेड कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, यानी कि अगर यहां पर जो अमलगमेटेड कंपनी है, जो अमलगमेटेड कंपनी है उसके शेयर्स यहां पर दिए जाते हैं टारगेट कंपनी यानी कि अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उसके केस में क्या रहता है? दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 47 के आपके सेक्शन सबसेक्शन 7 में एंड सेक्शन 49 के सबसेक्शन 2 में इनको कवर किया गया है। यानी कि अगर यहां पर बाय ट्रांसफर जो शेयर होल्डर है उसको यहां पर अमलगमेटेड कंपनी में शेयर्स दिए जाते हैं तो पर्टिकुलरली उसको यहां पर क्या नहीं कहा जाएगा? तो सिंपल आसान लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि अगर कोई भी यहां पर ट्रांसफर की जाती है शेयर होल्डर के द्वारा अमलगमेटिंग कंपनी में, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर 1 था, इसने यहां पर कंपनी बी में यहां पर अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिए है, तो उसको हम यहां पर ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे। किन कंडीशन में कंसीडर नहीं करेंगे? कि अगर जो यहां पर ट्रांसफर की गई है वो इस एवज में की गई है कि यहां पर इसको अमलगमेटेड कंपनी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कंपनी में से शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। पहली चीज ये होगी। एंड दूसरी चीज यहां पर ये चीज है कि अमलगमेटेड कंपनी जो इंडियन कंपनी है एंड फॉर द जो कॉस्ट ऑफ शेयर है इसकी यहां पर दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी ओवर देयर। अमलगमेटिंग कंपनी के कॉस्ट ऑफ शेयर्स की जो है वो दैट विल बी इक्वल टू अमलगमेटेड कंपनी के कॉस्ट ऑफ शेयर्स के इक्वल, तो भी यहां पर इसको ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर ये कंडीशंस यहां पर फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन थी किसके रिलेटेड? कि यहां पर जो ट्रांसफर की गई है शेयर होल्डर के द्वारा दैट इज एक्चुअली इन कंसीडरेशन कि इसको यहां पर पर्सन को यहां पर अमलगमेटेड कंपनी यानी कि नई कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहां पर अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज इसके रिलेटेड जो कॉस्ट ऑफ शेयर है, यहां पर कॉस्ट ऑफ शेयर है वो यहां पर अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी दोनों की यहां पर इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। फॉर इट्स रिलेटेड टू टैक्स रिलीफ टू द शेयर होल्डर ओवर देयर, यानी कि जो अमलगमेटिंग कंपनी के जो यहां पर शेयर होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या उनको बेनिफिट है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी यहां पर एग्जम्पशन है फ्रॉम द कैपिटल गेन टैक्स ओवर देयर, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स अगर यहां पर अराइज होता है रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर कोई यहां पर शेयर होल्डर है अमलगमेटिंग कंपनी का, वो यहां पर अपने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करता है, यानी कि उसने यहां पर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करेगा ना, वो अपने अमलगमेटेड कंपनी में नई कंपनी जो बन रही है उसमें शेयर ट्रांसफर करेगा, तो उसको यहां पर कोई भी कैपिटल गेन यहां पर जो टैक्स होगा वो उसके ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि इसको हम यहां पर ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जो पुराना शेयर होल्डर था जब ये कंपनी अमलगमेट हो जाएगी तो ए कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इसको मिल जाएंगे, यानी कि इसके पास मान लीजिए पहले 100 शेयर्स थे, ठीक है, अब स्वैप रेशियो लेट्स से इसकी 2:1 है, 1:2 है, ठीक है, यानी कि एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिलने वाले हैं इसको, तो इसको यहां पर ए कंपनी के 200 शेयर्स मिल जाएंगे, इसको यहां पर ए कंपनी के 200 शेयर्स मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर यहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा किसी भी तरह का। पहली चीज तो ये है। एंड फर्दर जो अमलगमेटेड कंपनी होनी चाहिए नई वाली जो बनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यहां पर ये रियायत इसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यहां पर इसको रियायत मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है वो उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एक कंपनी नई कंपनी में वो यहां पर चला गया, ठीक है, उसके केस में उसको यहां पर नई अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, तो उसके केस में यहां पर उसके ऊपर कैपिटल टैक्स नहीं पड़ेगा अगर वो इंडियन कंपनी है तो। ओके, फॉर इट्स रिलेटेड टैक्स रिलीफ टू द अमलगमेटेड कंपनी, यानी कि जो नई कंपनी बन गई है उसको क्या टैक्स रिलीफ मिलने वाले हैं उसके बारे में। तो सेक्शन 72A जो है यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो यहां पर मर्जर ऑफ सिक कंपनी के साथ डील करता है। कई बार कहता है कि जैसे मान लो कोई चीज नहीं चल रही है तो यहां पर स्टैच्यूटरी मर्जर होता है, यानी कि इस कंपनी को मर्ज कर दिया, यहां पर नई कंपनी में यहां पर मर्ज कर दिया, ओके, हेल्दी कंपनी के साथ, यानी कि ये आपकी सिक यूनिट था, दिस वाज अ सिक यूनिट एंड दिस वन वाज अ
हेल्दी यूनिट। अब हेल्दी यूनिट के साथ इसको क्या कर दिया, यहाँ पर मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका लॉस था, जो इस कंपनी का लॉस था, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड फर्दर जो इसकी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन थी, जो डेप्रिसिएशन अभी तक इन्होंने चार्ज नहीं करी है अपने एसेट्स के ऊपर, उस डेप्रिसिएशन को, उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड फर्दर इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले टाइम में आपका जो फर्दर फ्यूचर इनकम टैक्स होगा, जो फ्यूचर आपका टैक्सेबल इनकम होगी, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर डाउन हो जाएगा, वो यहाँ पर कम हो जाएगा। दैट इज अ बेनिफिट दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। ओके, एंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंडीशन मिलेगा अगर यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि कंपनी जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, या फिर कोई शिप या होटल कंपनी है, उसको किसी और कंपनी के साथ मर्ज किया जाता है, पहली कंडीशन वो। एंड फर्दर दूसरी कंडीशन कोई बैंकिंग कंपनी है जो सेक्शन 5C में रेफर्ड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, एंड फर्दर विद अ स्पेसिफाइड बैंक जो कि नॉट 2 में कवर्ड है, उसके साथ यहां पर मर्ज किया जाता है। तो एंड फर्दर वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी, या फिर कंपनी जो कि यहां पर ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट में इन्वॉल्व है, या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो यहां पर सिमिलर बिजनेस में जुड़ी है, उनके साथ मर्जर किया जाता है। सिर्फ उसी केस में यहां पर ये जो बेनिफिट है वो यहां पर मिलने वाला है। रिलेटेड टू की जो लॉसेज हैं वो यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, जो यहां पर डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड है वो यहां पर आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। दैट वुड बी द फंडा। सबसे पहले यहाँ पर नोट 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नोट 1 बेसिकली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करनी है गुड्स की या सॉफ्टवेयर की, या फिर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन में है, जनरेशन में है, माइनिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट, रेलवे सिस्टम में है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, रेडियो पेजिंग, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो सभी नोट 1 में आती हैं। अगर इनसे रिलेटेड यहाँ पर मर्जर किया जाए तो उसके बारे में। सेकेंड नोट में यहाँ पर हमारे पास है कि स्पेसिफाइड बैंक, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या उसके कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, या फिर कोई स्पेसिफाइड सब्सिडरी बैंक हो गया जो स्टेट बैंक की सब्सिडरी बैंक की डेफिनेशन में शामिल है, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट न्यू बैंक इंस्टीट्यूट हो गया जो कि पर्टिकुलरली सेक्शन 3 ऑफ द बैंकिंग कंपनी के अंडर यहां पर सेटअप किया गया है। ठीक है, तो अमलगमेटेड कंपनी जो होगी, इसमें कंडीशंस अब पढ़ लेते हैं। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। जो अमलगमेटेड कंपनी नहीं बनेगी वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। एंड फर्दर जो अमलगमेटेड कंपनी यहां पर बन रही है वो पर्टिकुलरली क्या कर सकती है, जो कोई भी यहां पर लॉस अकर हुए हैं एंड जो यहां पर पर्टिकुलर आपके पास डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड है, जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड है, यहां फिर आपके पास लॉस एक्यूमुलेट हुए हैं 3 साल के लिए या उससे ज्यादा टाइम के लिए, आप उनको पर्टिकुलरली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अमलगमेटेड कंपनी जो होगी वो यहां पर डेट ऑफ अमलगमेशन से, वो यहां पर डेट ऑफ अमलगमेशन से 2 साल पहले तक की जो यहाँ पर जो भी उसके पास फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ अमलगमेशन आज की डेट है, दिस इज द प्रेजेंट डेट ओवर दिया, एंड फर्दर 2 साल के पीरियड से पहले तक के जो भी इसके यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है, यहाँ पर इनकी जो बुक वैल्यू थी, इस एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू थी, उसकी 3/4 वैल्यू को कम से कम आगे कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड कर रही होगी, अगर तभी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। अमलगमेटिंग कंपनी को यहाँ पर कंटिन्यूसली होल्ड करना पड़ेगा एटलीस्ट 3/4 ऑफ दी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू थी 2 साल पहले, जो यहाँ पर इसके पास फिक्स्ड एसेट्स है, उसके यहाँ पर कम से कम 3/4 वैल्यू उसके पास कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आगे जो है आप पर्टिकुलरली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस को, अनअब्जॉर्ब्ड यहाँ पर डेप्रिसिएशन को, अदरवाइज नॉट। ओके, एंड फॉर द रिलेटेड टू जो अमलगमेटेड कंपनी होगी वो यहाँ पर कम से कम 5 साल के लिए, यहां पर कम से कम 5 साल के लिए अमलगमेटेड कंपनी की बात करें, यानी कि जो नई फॉर्म कंपनी उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब यहां पर डेट ऑफ अमलगमेशन आ गई, इस डेट को अमलगमेशन हो गई है, ठीक है, उसके बाद आगे 5 साल के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यहां पर जो अमलगमेटेड कंपनी है वो यहां पर अमलगमेटिंग कंपनी के जो उसने एक्वायर किए थे यहां पर एसेट्स, अमलगमेटिंग कंपनी के उन एसेट्स के यहां पर 3/4 ऑफ द एसेट्स को, 3/4 ऑफ द एसेट्स एज ऑफ द बुक वैल्यू उनको आगे कैरी करेगी, कंटिन्यूसली कैरी करेगी, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी। दैट इज अ फंडा रिलेटेड। ओके, ऐसा नहीं है कि टैक्स बेनिफिट ले लिया उसके बाद हम उसको डिस्पोज करते हैं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 साल के लिए आपको आगे उन एसेट्स को चलाना पड़ेगा, 3/4 वैल्यू को अपनी बुक वैल्यू में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर द जो अमलगमेटेड कंपनी है वो यहां पर अमलगमेटिंग कंपनी का जो बिजनेस है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अमलगमेशन कम से कम 5 साल के लिए आगे उसका बिजनेस कंटिन्यूस चलाएगी। जब हम सिक यूनिट को हेल्दी यूनिट में मिला रहे हैं तो उसके केस में जो यहाँ पर हेल्दी यूनिट है वो कम से कम सेम ब्रांचेस को, सेम चीज़ों को आगे 5 साल के लिए आगे चलाएगी। ओके, दैट वुड बी द थिंग रिलेटेड टू आगे चलाना पड़ेगा। एंड फॉर द अमलगमेटेड कंपनी जो होगी वो यहाँ पर अगर ये जो कंडीशंस हैं, जो भी यहाँ पर बाकी कंडीशंस रहेंगी उनको यहाँ पर पर्टिकुलरली चलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सिक यूनिट को रिवाइव करने के लिए अगर यहाँ पर कुछ इनको सिस्टम चलाना पड़ेगा तो उन कंडीशंस को भी इनको मानना पड़ेगा, तभी यहाँ पर इसके लॉसेस को
इसके लॉसेस को एंड साथ के साथ जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो क्या क्या मेन कंडीशंस थी? पहली मेन कंडीशन थी कि इंडियन कंपनी होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशंस थी कि यहाँ पर जो अमलगमेटिंग कंपनी है, कंपनी बी अमलगमेटिंग कंपनी है, वो यहाँ पर पिछले 2 साल में उसकी जो बुक वैल्यू थी उसकी कम से कम यहाँ पर जो 3/4 बुक वैल्यू है उसको मेंटेन करना चाहिए। एंड फर्दर उसके बाद यहाँ पर अमलगमेटेड कंपनी के लिए था कि इनको आगे 5 साल के लिए कम से कम 3/4 बुक वैल्यू को मेंटेन करके रखना पड़ेगा नई कंपनी को। एंड फर्दर ए कंपनी यानी कि जो अमलगमेटेड कंपनी है इसको कम से कम 5 साल के लिए आगे बिजनेस चलाना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, फर्दर कंडीशन क्या है कि अमलगमेटेड कंपनी है जिसने यहां पर किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, लेट्स से द केस कि उसने एक्वायर किया है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को कम से कम एक्वायर किया है, तो यहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कम से कम, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर अंडरटेकिंग है, इसने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को यहाँ पर एक्वायर किया, उसकी सारी मशीनरी एंड ऑल सभी चीज़ों को यहाँ पर एक्वायर किया है, उसके केस में पर्टिकुलरली ये कहा गया है कि आगे आने वाले यानी कि डेट ऑफ अमलगमेशन से 4 साल के बीच में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था, लेट्स से कि इसकी बी को एक्वायर किया गया था एंड इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 1 लाख यूनिट्स की थी, तो यहाँ पर 4 साल से पहले ये यहाँ पर 50% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहाँ पर रीच आउट करेगी। 50% ऑफ द मिनिमम जो यहाँ पर कैपेसिटी है उसको यहाँ पर रीच आउट करेगी। एंड फर्दर ये चीज़ यहाँ पर होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इस केस में हम रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नोट। ओके, अदरवाइज आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड अमलगमेटेड कंपनी जो है वो यहाँ पर एओ को, यानी कि जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा उनके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर्म 62 को यहाँ पर सबमिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि ड्यूली वेरीफाइड होगा अकाउंटेंट के पास से एंड फर्दर विद रेफरेंस टू द बुक्स ऑफ द अकाउंट, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में बताया गया होगा। एंड वो डॉक्यूमेंट यहाँ जो भी डाटा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवर देयर, रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ इनकम ओवर देयर, वो यहाँ पर इंडिकेट करेगा। एंड 5 साल के पीरियड के लिए डाटा जो होगा वो यहाँ पर अलग से उनको भेजना पड़ेगा। दैट इज द फंडा रिलेटेड। ओके, एंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म 62 को फर्निश करने की, वो सिर्फ और सिर्फ पहले टाइम के लिए जब अमलगमेटेड कंपनी जो है वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है एंड जो 50% का लेवल है वो अचीव नहीं करती, जब एक बार अचीव कर लेगी उसके बाद यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली इसे बार बार सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर ये जो फॉर्म 62 है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपका प्रोडक्शन का डाटा भी रहेगा एंड फर्दर इनकम का डाटा भी रहेगा यहाँ पर, एंड वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर होगी। अगर यहाँ पर आपकी ऊपर कंडीशन जो हमने पढ़ी हैं वो सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, उसके केस में जो बिजनेस लॉस हुआ या जो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन थी वो यहाँ पर पर्टिकुलरली आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। इन केस अगर आप कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो उसके केस में पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी यहाँ पर वैल्यूज, जो भी अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस या फिर जो आपके अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अगर आपने उसका टैक्सेशन में बेनिफिट लेना पड़ेगा, आपको उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में शामिल करके उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट वुड बी द फंडा रिलेटेड टू इट। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फर्दर रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ द मैट क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ द मैट क्रेडिट ओवर देयर। तो मैट होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर होता क्या है कि लेट्स द केस की कंपनीज को ना अपना जो भी उनका प्रॉफिट होता है, जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स होता है या कुछ भी चीज़ होते हैं, उनके हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ता है एंड वो टैक्स ही पे कर देती हैं। ओके, लेकिन बाद में जब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ एंड फर्दर आपने सभी कैलकुलेशन करी तो एग्जाम्पशंस की वजह से या और चीज़ों की वजह से आपको पर्टिकुलर टैक्स पे करना नहीं बनता था, तो आपका ये टैक्स लेना वापस बनता था। दैट इज अ क्रेडिट टू यू, दैट इज अ क्रेडिट टू यू, जो आपको वापस मिलना चाहिए था। ओके, दैट इज अ फंडा रिलेटेड टू इट। यानी कि अगर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जो है पेएबल अंडर द जनरल प्रोविजन ऑफ द ITA, अगर वो 15% से कम है यहाँ पर कंपनी के बुक प्रॉफिट से, तो उसके केस में एक्सेस ऑफ मैट जो होगा वो यहाँ पर पर्टिकुलरली एज अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ईयर परमिट है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि उसी टैक्स फॉरवर्ड आप मैट को, यानी कि जो आपका क्रेडिट था उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपने एक्सेसिव टैक्स ऑलरेडी काइंड ऑफ पे कर दिया हुआ है, तो अब ये इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि आगे जाके आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, एंड ये सेक्शन 115 JAA के अंदर यहाँ पर कवर्ड है। आप फ्यूचर में जो आपका टैक्स हुआ आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, राइट। दैट इज द थिंग रिलेटेड इट। फर्दर यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेस्ड प्रोविजन नहीं है 115 JAA में कि अमलगमेटेड कंपनी के केस में कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, या फिर जो मैट क्रेडिट अवेलेबल था अमलगमेटिंग कंपनी का, लेट्स गेस कि बी ने यहाँ पर पहले इसने टैक्स पे किया हुआ था जो कि मैट में यहाँ पर अवेलेबल था, ठीक है, उसके केस में यहाँ पर इसने किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन 115 JAA है,
जो 115 JAA है ये यहाँ पर बात नहीं करता इसके बारे में, उसमें बताया नहीं है कि यहाँ पर अगर अमेलगमेटेड कंपनी है या डीमर्जर कंपनी है यहाँ पर, तो उसके केस में इस कंपनी ने अगर पे किया हुआ पहले एक्सेसिव टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी किस तरह से आगे इसको डील किया जाएगा उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया। ओके, सो क्रेडिट जो अवेलेबल होगा उसका क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसके बारे में कोई भी जजमेंट यहाँ पर नहीं है। देन फर्दर रिलेटेड टू कैपिटल गेन टैक्सेस, इट्स रिलेटेड टू द कैपिटल गेन टैक्सेस ओवर हियर, यानी कि अगर आपके जो शेयर्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं कैपिटल एसेट की तरह एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द ITA ओवर देयर, तो कोई भी जो गेन आपका अराइज होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगना बनता है। कैपिटल गेन टैक्स जो होगा मस्ट बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, यानी कि जब आपका एसेट ट्रांसफर हुआ, जब आपने यहां पर ये जो एसेट था लेट्स से ये शेयर है ए, जब ये शेयर आपने ट्रांसफर किया उसके टाइम पर जो आपको गेन हुआ उसके ऊपर आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा एंड नॉट नेसेसरली द सेम टाइम व्हेन द कंसीडरेशन इज रिसीव्ड बाय द ट्रांसफर। ऐसा नहीं होता कि जिस टाइम पर कंसीडरेशन रिसीव होगी उस टाइम पर आप कैपिटल गेन टैक्स पे करोगे, नो, जिस टाइम पर आपने ट्रांसफर कर दिया उस टाइम पर आपको यहां पर ये ड्यू हो गया कि आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स यहां पर बनता है अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर की डेट के हिसाब से। ओके, दैट इज अ फंडामेंटल। फर्दर बात करते हैं टैक्स इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड एमएनडे, यानी कि अगर आप डोमेस्टिक मर्जर एंड एक्विजिशन करते हो उसके केस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं टैक्स से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। जब यहां पर अलॉटमेंट की जाती है सिक्योरिटीज की या बाय द पेमेंट ऑफ कैश ओवर देयर, ठीक है, कैश कंसिडरेशन में पेमेंट की जाती है तो उसके केस में दिक्कत आती है, टैक्सेशन पे करना पड़ता है, टैक्स का पार्ट वो बन जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ऑलरेडी अगर आप इक्विटी को छोड़कर डेब्ट को छोड़ करके अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो टैक्सेबिलिटी बन जाती है। ओके, फर्दर रिलेटेड टू पार्ट कंसिडरेशन, अगर आप यहां पर डायरेक्टली पे कर देते हो शेयर होल्डर्स को, ठीक है, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू उसके केस में दिक्कत रहती है कि अगर आपने पार्ट कंसिडरेशन पे कर दी है, कैश में पे कर दी है एंड फर्दर बाकी जो कंसिडरेशन है वो आप बेसिकली शेयर्स के थ्रू पे करने वाले हो, ओके, उसके केस में भी रहेगा। एंड फॉर द मैट क्रेडिट अवेलेबल रहेगा, उसके बारे में कोई डेफिनेशन क्लियर ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि बी कंपनी जो थी उसका 5 लाख का क्रेडिट MAT पड़ा था, उसका 5 लाख का MAT पड़ा था। अब ये MAT जो होगा ये यहाँ पर आगे ट्रांसफर होगा, एक के पास नहीं होगा, उसके बारे में कोई यहाँ पर क्लियरेंस नहीं है। फॉर द मर्जर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनटू कंपनी, अगर LLP को मर्ज करते हैं हम यहाँ पर कंपनी के बीच में तो उसकी टैक्सेशन के साथ किस तरह से डील करेंगे, तो ये पर्टिकुलरली इश्यूज हैं डोमेस्टिक M&A के केस में। ओके, एंड अगर क्रॉस बॉर्डर M&A की बात करें तो यहाँ पर अगर टैक्सेस, मैंने आपको बताया था ना, जैसे टैक्सेस लगते हैं तो डबल टैक्सेशन हो जाती है, डबल टैक्सेशन का इशू बन जाता है जब दो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर सेम इनकम के ऊपर टैक्स लगाती हैं, सेम लीगल एंटिटी के ऊपर, तो उसके केस में क्या होता है कि डबल टैक्सेशन हो जाती है। एंड ज़्यादातर कंट्री क्या होती हैं अब DTA अलायंस करती हैं, पर्टिकुलरली क्या होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक अलायंस होता है, ठीक है, तो उसके DTA के केस में होता है अब यहाँ पर कंट्रीज होती हैं वो कहते हैं कि जहाँ पे इनकम जनरेट हुई है वहाँ पे टैक्सेबल लगेगी एंड दूसरी कंट्री में टैक्सेशन नहीं होगी, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आपकी जो टैक्सेशन है वो डबल नहीं होती। ओके, तो बायलैटरल DTAs यहाँ पर साइन हो जाते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डील फाइनेंसिंग, इट्स रिलेटेड टू द डील फाइनेंसिंग ओवर देयर, तो फाइनेंसिंग की बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि एक्वायरर के पास अवेलेबल है, जैसे कि वो इक्विटी को इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं, इंटरनल अक्रूवल्स हो सकते हैं, इंटरनल अक्रूवल्स यानी कि जो उनका पैसा जोड़ रखा है उन्होंने लंबे टाइम के लिए, या फिर वो लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं बैंक से, लेंडर से, या फिर वो कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इशूज हैं, यानी कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इशू कर सकते हैं, या तो कॉमन इक्विटी इशू कर सकते हैं, प्रेफर्ड इक्विटी इशू कर सकते हैं, या फिर उनके रिजर्व्स में पैसा, उनके पास प्रॉफिट्स ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है जहां से वो कंपनी को परचेज करना चाहते हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं, लेंडिंग लेते हैं, बैंक से लेते हैं, या फिर वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर देते हैं जैसे कि बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू कर दिए एंड उसके बदले में वो यहाँ पर कंपनी को परचेज कर लेते हैं, डेट वुड बी द फंडा रिलेटेड टू इट। एंड साथ के साथ यहाँ पर LMA के बारे में होता है, दैट इज ए लोन मार्केट एसोसिएशन, एंड जो स्टैंडर्ड लोन्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है, उनका भी यूज किया जा सकता है। तो इसमें सिर्फ ना आप जो यहाँ पर फुल इनके नेम्स हैं उनके बारे में सिर्फ ध्यान दीजिए, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली APLMA की बात करें तो दैट इज एशिया पैसिफिक का लोन मार्केट एसोसिएशन, एंड LMA नॉर्मल कहता है लोन मार्केट एसोसिएशन होता है। तो कोई भी यूनिवर्सली एक्नॉलेज मार्केट स्टैंडर्ड नहीं है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है जब भी यहाँ पर पर्टिकुलरली जो लेंडिंग प्रोवाइड की जाएगी या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा या फिर NBFC के द्वारा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप लोन मार्केट एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स आप उनका यूज कर सकते हो। ओके, फॉर द रिलेटेड टू फंड रेजिंग स्ट्रक्चर्स ओवर देयर, तो पहला हो सकता है इनबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस ओवर देयर। तो इनबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस में सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू ऑफशोर एक्वायरर। तो ऑफशोर परचेजर जो होता है वो एक SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को यहाँ पर एस्टैब्लिश करेगा जो कि इंडिया से बाहर होगी।
कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इनबाउंड में क्या है कि यहाँ पर पर्सन है जो कि इंडिया में ही है, कंपनी है कोई, ठीक है, एंड यहाँ पर ये बाहर किसी कंट्री में कोई यहाँ पर एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल कर देगी जो यहाँ पर फाइनेंसिंग लेगी, एंड फर्दर इसके बाद यहाँ पर जो कंपनी को एक्वायर करना है वहाँ पर आप उसको एक्वायर कर लोगे, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर एक्विजिशन जो करोगे वो एफडीआई के रूप में होगा, दैट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाहर बैठे हो इंडिया से, ठीक है। तो एफडीआई एसपीवी जो होगी वो यहाँ पर लोन ऑब्टेन करेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कि दूसरी कंट्रीज में होंगे, एंड इंडिया से कोई लेना देना नहीं होगा। फर्दर रिलेटेड टू इनबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस होता है जो एफओसीसी है। एफओसीसी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, यानी कि जो आपकी फॉरेन ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी होगी, एंड फर्दर वो यहाँ पर लेवरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडियन मार्केट में, ठीक है। अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए लेवरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहाँ पर बाहर से लोन ले ले एंड फर्दर यहाँ पर पर्टिकुलरली कर ले। जैसे मान लीजिए कि एक फॉरेन ऑन कंट्रोल कंपनी जो होगी वो यहाँ पर परमिट नहीं होगा कि वो इंडियन मार्केट में यहाँ पर शेयर्स को परचेज के लिए एफओसीसी डायरेक्टली कर सकती ना, वो एफडीआई के थ्रू कर सकती है। सो एफओसीसी पर्टिकुलरली अनएबल रहेगी किस चीज़ में कि वो यहाँ पर इंडियन बैंक से फाइनेंस नहीं ले सकती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस नहीं सकती, इंडियन फंड से फाइनेंस नहीं सकती, एंड जो उसके फंड्स होंगे उसका इस्तेमाल करते वो यहाँ पर पर्टिकुलरली पेमेंट कर सकती है एंड एक्विजिशन कर सकती है। एंड अगर एक्विजिशन यहाँ पर एफओसीसी के द्वारा की जाती है एंड देन डेप्ट जो होगा वो एफओसीसी पर्टिकुलर किस फॉर्म में लेगी, वो यहाँ पर नेगोशिएबल जो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे, ठीक है, नॉट नेगोशिएबल, इट्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे विच आर एक्चुअली परचेज बाय द एफपीए। जो एफपीए होते हैं वो परचेज करते हैं, उनके थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। ओके, लेट्स से इसकी यहाँ पर फॉरेन कंट्रोल एंड फॉरेन ओन कंपनी है यहाँ पर इंडिया में, दिस इज अ फॉरेन कंट्रोल एंड फॉरेन ओन कंपनी। अब यहाँ पर ये लेवरेज नहीं ले सकती। क्यों लेवरेज ले सकती? ये किसी और कंपनी को एक्वायर करने के लिए यहाँ पर पैसा जो है इंडियन बैंक से या फंड से नहीं ले सकती। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनको इशू करेंगे जिसमें एफपीआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड फॉर द वो पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर एक्विजिशन को करने के लिए। ओके, दैट इज अ इनबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस। ओके, फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू आउटबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस ओवर देयर। इसमें सबसे पहली चीज आती है ऑनशोर फाइनेंसिंग। अब आउटबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस के केस में ऑनशोर फाइनेंसिंग का मतलब ऑफशोर होगा, बाहर होगा। ऑनशोर का मतलब होगा कि जो आपकी एसपीवी होगी, ठीक है, वो इंडिया में होने वाली है, दैट वुड बी इन इंडिया इटसेल्फ। ओके, सो इंडियन बिजनेस जो है वो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या करेंगे, वो लोन लेंगे, ठीक है, परचेज ऑफ इक्विटी इन फॉरेन और जॉइंट वेंचर फॉर पर्टिकुलरली क्या करेंगे, लेट्स से कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बाहर किसी कंपनी में, बाहर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके केस में क्या होगा, इंडियन बिजनेसेस जो है वो अपना पैसा लगाते हैं जॉइंट वेंचर्स में, होली ओन्ड सब्सिडरीज में, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर की कंपनीज में, वो अपना पैसा लगाते हैं ना वहाँ पर। तो इंडियन एक्वायरर जो होगा वो फाइनेंसिस किससे लेगा, वो यहाँ पर फाइनेंसिस लेगा जो भी यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनकी फॉर्म में, या फिर जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनसे लोन लेकर के वो पैसे का इस्तेमाल करेगा एंड फर्दर एक्विजिशन यहाँ पर करेगा। दैट इज अ आउटबाउंड एक्विजिशन फाइनेंस, यानी कि बाहर आपने एक्विजिशन करनी है किसी की, उसके बारे में। फर्दर ईसीबी का, यानी कि जो आपके पास ईसीबी है, ठीक है, कमर्शियल बोरिंग है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है इंडियन कंपनी के द्वारा फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। यानी कि यहाँ पर इसने ए ने जो पैसा लिया वो बाहर से किसी कंट्री से ले लिया एंड उस पैसे का इस्तेमाल बाहर की किसी जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी या किसी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करने के लिए कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शंस होंगी जो आरबीआई ने दी हैं उसके रिगार्ड में उनका पर्टिकुलरली ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, फॉर दिस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग फ्रॉम द ऑफशोर सोर्सेज। फाइनेंसिंग फ्रॉम द ऑफशोर सोर्सेज क्या, इंडियन एक्वायरर जो होगा वो यहाँ पर बाहर की किसी ऑफशोर कंपनी से, यानी कि बाहर जो कंपनी बैठी है कोई, उससे यहाँ पर फाइनेंसिंग लेगा। ये कंपनी इंडियन यहाँ एक्वायरर को फाइनेंस करेगी एंड फर्दर इसका इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ पर एक्वायरर है वो एक्वायर करेगा। अब यहाँ पर भी जो आपकी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पर पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर दिस रिलेटेड टू डोमेस्टिक एक्विजिशन फाइनेंस। डोमेस्टिक एक्विजिशन फाइनेंस के केस में क्या, आप यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है, आप डोमेस्टिक एक्विजिशन करना चाहते हो और आपको एक्विजिशन के लिए डोमेस्टिक फाइनेंस चाहिए। ओके, तो वो पर्टिकुलरली आपको एनसीडीज की फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड एनसीडीज की फॉर्म में या फिर एनबीएफसी से लोन मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द एफपीए। यानी कि अगर आपके जो ये एनसीडीज आपने इशू की, मैंने आपको बताया ना कि जो यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी एफपीआईज के द्वारा एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे, इनको पर्टिकुलरली कम से कम जो इनकी मैच्योरिटी होगी, लेंथ होगी, कम से कम 1 साल की इनकी मैच्योरिटी होगी एंड जो कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एनसीडी में की गई है, एफपीआई के द्वारा की गई है, वो आरबीआई की कंसंट्रेशन लिमिट के हिसाब से होगी। ये नहीं कि आप आरबीआई की कंसंट्रेशन की लिमिट जो है उनको गाइडलाइंस को तोड़ दो, उनका ध्यान रखना पड़ेगा एंड फर्दर ये पैसा इसके पास आएगा एंड पैसे का इस्तेमाल जो है आगे एक्विजिशन के लिए किया जाएगा। ओके, so that would be all related to this particular video.
आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.